at least mathematically you explain people that since cos 90 is 0, therefore work done by the pulley is 0, because the weight of the object which the pulley is carrying is acting in vertical direction and displacement is in forward direction. What is the angle between them? 90 degree. Fine. So this dot product is defined AB cos theta. We call it a scalar product because the resultant is scalar. And another thing about it, can I write A dot B equal to B dot A? बट बिफोर वी बिगिन विजिट कीजिए IITwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। I want to separately tell you how to subtract two vectors, though there is no doubt that subtraction is nothing but the case of addition only. But see, when you want to have a separate process called subtraction, how do you do it? So see, learn how to subtract two vectors. Subtraction of two vectors. Vector A is given, vector B is also given. So what do you want? You want R A minus B. Yeah, let it be C. You want A minus B. Can I write A minus B as A plus of minus B? So why don't you find first minus B vector? It's very easy to find minus B. Opposite of B and equal in. So very simple. So if I have to find minus B vector, this is A vector, this is B vector, this would be minus B vector. So forget about this for the time being. So add them. How to add them? Using parallelogram law. What do you do? Draw. So this result will be obviously A vector minus B vector. Let us, for the sake of simplicity, complete the first parallelogram as well. इसको भी complete कर लो. इस parallelogram का ये था resultant. ठीक है? So what is this resultant? A plus B. This is A minus B. जो ये है वही ये है. ठीक है? तो इतना लंबा, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है. दैट मीन्स उसी पैलोग्राम में हम हमेशा एक वेक्टर को अगर प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को A माइनस बी कर सकते हैं. हाँ, डिबेट यहां होना चाहिए कि बड़ा कौन सा होगा. ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है कि A प्लस बी ज्यादा होगा या A माइनस बी ज्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे. This could be little interesting. So tell me whether A plus B is more or A minus B is more. Is it conditional or universal? हरदम या कभी कभी? क्या मुंडी हिलाने से हमें कैसे पता लगेगा क्या बोल रहे हो आप? कभी कभी. A plus B is always more than A minus B? जरूरी नहीं है. अच्छा, फिर कब A plus B ज्यादा होगा? चलो केसेस बताओ. A plus B ज्यादा कब होगा A minus B से? टेल मी द केस. Tell me the case when A plus B is more than A minus B का magnitude. अभी पैरेललोग्राम बनाया था, दोबारा बना लो. इस पैरेललोग्राम में कौन सा डायगोनल बड़ा लग रहा है? ये जो डायगोनल बड़ा लग रहा है, ये बड़ा कब तक लगेगा? इसके बाद अगर जाओगे छोटा लगने लगेगा. करके देख लो. इसका मतलब थीटा जब तक एक्यूट है तब तक तो A प्लस बी विल बी मोर देन A माइनस बी. थीटा जब 90 है तो बराबर. थीटा जब obtuse होगा तो A plus B becomes smaller than A minus B. Somewhere you need to note it down. So A plus B is more than A minus B when theta is less than 90 degree
A plus B is equal to A minus B when theta is 90 degree and A plus B is less than A minus B when theta is more than 90 degree. तीनों केसेस, हाँ बेटा, ये वाला मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्या मिटा दिया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन किया कैसे था? ए वेक्टर बी वेक्टर, हमें करना है ए माइनस बी। मैंने कहा आप इसे ए माइनस बी को ऐसे सोचो, ए प्लस ऑफ माइनस बी। ये अगर ये बी है तो ये वाला माइनस बी हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट। अब इन दोनों वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम बना लो, इसका जो रिजल्टेंट होगा यही तो होगा ए माइनस बी। ठीक है, मैंने ये कहा था कि यहां इतना करने के बजाय आप चाहते तो उसी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते, उसमें से एक डायगोनल ए प्लस बी होता, दूसरा क्या होता, क्योंकि जो ये है देखो वही ये है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये बताया था। ठीक है, अब जरा इसका केस ले लो, टेक दिस केस, बाकी दोनों केसेस तो आप जानते हो। टेक दिस केस, टेक टू वेक्टर्स and add them, make a parallelogram law, make a parallelogram. Which diagonal is going to be a plus b and which one will be a minus b? That means which is more in magnitude? A minus b is more in magnitude. ठीक है, is it okay? Can I also write a plus b is equal to a minus b if a plus b का mod is equal to a minus b का mod? Just give a break, 2 minutes दिमाग को ब्रेक देते हैं और आपसे हम कोशिश करते हैं, आप सोच के मुझे बताओगे कि is it, if this is true, is this, if this is true then is this true? Whenever this is true, then can I conclude that even this is true? Meaning is, if a plus b ka mod is equal to a minus b ka mod, then can I say that a plus b vector is also equal to a minus b vector? Because when we defined equality of the two vectors, we said that two vectors will be equal when? So magnitude equal होने पे हम vectors equal कैसे कर सकते हैं? Direction अलग अलग है, हो सकता है, ठीक है? So that means if this is true, this is not true, because this means magnitude तो same है लेकिन direction same नहीं है, ठीक है? Is it okay? Should I rub this, children? Yes, बेटा। कौन सा? ये? ठीक है, बताता हूं दोबारा। मैंने कहा कि एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, इनको यूज करके आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये डायगोनल बताओ क्या होगा? A प्लस B। ये वाला डायगोनल क्या होगा? उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि आपको पता है किसी रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल हमेशा लेंथ में बराबर होते हैं। तो क्या चीज बराबर है? A प्लस बी का मॉड किसके बराबर है? बट ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोनों वेक्टर भी बराबर होंगे आपस में, ठीक है? अच्छा, अगर ये ट्रू है सपोज करो ये ट्रू है, ये ट्रू होगा क्या कभी?
Can this ever be true? A plus B vector is equal to A minus B vector. एंगल जो मर्जी हो सोच लो, 0 डिग्री, 0 पे भी नहीं होगा. नहीं हो सकता. A plus B vector A minus B vector बराबर नहीं हो सकता. Actually, addition of two vector and subtraction, they can never be same. They will be same only in one case. And you know what is that case? When all of them are null vectors. It's the only situation when that is true. All of them are null vector. Naturally, null plus null is null, and null minus null is also null. Okay. कैसे होगा? एक तरफ आप नल प्लस बी कह रही हो, नल प्लस बी, और दूसरी तरफ नल माइनस बी कह रही हो, तो बी इक्वल टू माइनस बी कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है. हाँ. अच्छा, दूसरे को जो सबट्रैक्ट हो रहा है, जो ऐड हो रहा है, उसको नल कर दें. हाँ, तब हो सकता है. ए प्लस नल इक्वल टू ए माइनस नल, ये हो सकता है. वेरी गुड. ठीक है. ओके, नल पे ज्यादा दिमाग चलता है. Okay, children, let's multiply vectors now. The third है, fourth है, first, second, third, fourth. Multiply the vector. Fifth है. आप देख लेना नंबर क्या है. Multiplication of two vectors. We can multiply vectors by two different ways. A dot B is known as a scalar product. How do you write it? AB cos theta. And A cross B is vector product. How do you write? AB sin theta n cap. पहले आप इसे समझो. What is the meaning of this? A dot B, AB cos theta. We are actually multiplying in such a way that the resultant is having no direction. Okay, we must be doing because we might have been required somewhere in physics. Otherwise, ये तो एक जबरदस्ती की बात होगी. I'm writing A dot B as AB cos theta. So I'm asking this as a definition. Accept is a definition. A into B तो सिंपल था, ये तो आप जानते थे कि A into B मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अचानक से cos थीटा आ गया. ठीक है, और कभी sin थीटा आ जा रहा दूसरे केस में. दैट मीन्स ये दोनों डिफिनेशंस आपको एज इट इज अगर रटते हो तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई फिजिक्स होगी. इन दोनों के पीछे देयर मस्ट बी सम फेनोमेना जिसकी वजह से डिफाइन की जाती है. पहले वाले के लिए जो फिजिक्स है वो है W इक्वल टू F डॉट D. व्हाट इज W? You cannot define work done until and unless actually you find the dot product of the force vector and displacement vector. Very simple. There are cases where, यहाँ पर बताया गया, आपको हो सकता है ये चैप्टर हो गया हो अगर वर्क एनर्जी, तो टीचर ने बताया हो. There are cases where work is not done in spite of both the force and displacement are there. The case of Coulomb. ठीक है. Now how do you explain this? Until and unless you have some logic, it's very difficult to explain common man that the Coulomb is not doing any work, and then you put a logic that cos theta is there, and if theta is 90 degree, what is cos 90? 0. So at least mathematically you are explaining it. At least mathematically you explain people that since cos 90 is 0, therefore the work done by the Coulomb is 0 because the weight of the object which the Coulomb is carrying is acting in vertical direction and displacement is a forward direction. What is the angle between them? 90 degree. Fine. So this dot product is defined AB cos theta. We call it a scalar product because the resultant is scalar. And another thing about it, can I write A dot B equal to B dot A? So can we say that the dot product is also commutative? लिखते जाओ. So the dot product of two vectors is commutative. Dot product result into a scalar. Dot product is commutative. Dot product results into a scalar.
and the physical significance of dot product is, physical significance of finding dot product is work done equal to F dot D. This is physical significance. तीनों चीजें लिख ली. Dot product of two vectors is scalar, dot product is commutative by nature, and the physical significance of finding dot product is actually the work done is dot product of force vector and displacement vector. Fine? Is it okay? I tell you another very important aspect of defining dot product. Just see this diagram. Okay, these are the two vectors. This vector B vector will have a component along A vector, and vice versa. Even A vector will have a component along B vector. So when I actually say that a vector has a component along another vector, I give importance to one vector and I just neglect the other vector as far as the direction is concerned. Component निकालने का मतलब क्या हुआ? I am more interested in the contribution of this vector along the other one. ठीक वैसे जैसे एक बोलते कभी कभी बच्चों, इनके पीछे पीछे लग लो, जहां जहां जाए वहां वहां जाना. वो बच्चा बेचारा छोटा बच्चा है और जिनके पीछे लगने की बात करें वो बड़ा है. तो वी एक्चुअली गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू वन एस्पेक्ट एंड वी इग्नोर. सो हमने कहा कि ये दो वेक्टर है, एक काम करते, लेट अस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर along this vector. Next time I might ask you reverse, component of this vector along other vector. So when I do that, only one component I'm asking, दूसरा नहीं बोल रहा हूं निकालने को, सिर्फ एक कंपोनेंट. ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो होगा कंपोनेंट वो एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, एक इसके अलोंग कर दिया. तो अगर मैं अलोंग ले लिया मैंने एक कंपोनेंट, बताना ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, यहां पर ए कॉस थीटा, और बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बी कॉस थीटा. अब बी के दूसरे कंपोनेंट को भूल जाओ, क्योंकि मैंने इस वेक्टर को सब कुछ मान लिया, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए. अब मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी करोगे तब भी ए बी कॉस थीटा, उधर करोगे तब भी ए बी कॉस थीटा. दैट मींस एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट गिव्स टेल्स अस हाउ टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग. क्योंकि दो वेक्टर दो डायरेक्शन में है, ऐड करने के लिए तो मैंने लॉ बना दिया, ट्रायंगुलर लॉ, पैराबोला लॉ, थीटा निकालना सिखा दिया. अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्शन का क्या करोगे? आपस में डायरेक्शन मल्टीप्लाई नहीं होते, ये कभी नहीं होता नॉर्थ इंटू ईस्ट इज वेस्ट. ऐसे कोई बेवकूफी नहीं कर सकता. ये कौन सा तरीका? तब तक कल कहोगे कि ईस्ट इंटू वेस्ट इज, कुछ भी कह लोगे ऐसे ही, वर्टिकल डायरेक्शन. तो डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऐसे फिजिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है. अब यहां पर हम लोग अटक रहे हैं, कैसे कि वी हैव गॉट टू वेक्टर्स व्हिच आर बीइंग मल्टीप्लाइड. मैग्नीट्यूड का तो मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्शन का क्या करें? तो करते हैं कुछ, नलीफाई करते हैं. सो वी जस्ट फाइंड द, जहां कर सकते हैं वही करेंगे. क्रॉस में नहीं कर पाऊंगा. क्रॉस में एक्चुअली एक दूसरा तरीका बताऊंगा कि कीपिंग डायरेक्शन आल्सो इन माइंड, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट वेयर द रिजल्टेंट इज आल्सो हैविंग अ डायरेक्शन, वो क्रॉस में होगा. ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका था डॉट प्रोडक्ट को समझने का. समझ में आ गया? इज इट ओके? वर्क डन के सेंस में समझाऊं? बहुत आसान है. आपने इस मास पे ये फोर्स लगाया और आपने ये कहा कि मैंने सर इसको यहां से फोर्स लगा के यहां डिस्प्लेस कर दिया. रिजल्टेंट के सामने सोचना, लेट अस बी अ कॉर्पोरेट वर्ड, रिजल्टेंट ओरिएंटेड वर्ड. बच्चे ने फोर्स ये लगाया, फाइन, रिजल्ट क्या है? मास कहां से कहां गया? ठीक है, इज इट ओके? आपको लगता नहीं कि इस फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, क्योंकि रिजल्ट तो हमें यहां दिख रहा है. इस कंपोनेंट का मैं क्या करूं एज फार एज द रिजल्ट इज कंसर्न? बिल्कुल यूजलेस है, मैं ये नहीं कर रहा हूं. नॉट सेइंग दैट यूजलेस है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा कि उसका कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, ब्ला ब्ला, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कर रहा हूं रिजल्ट के एंगल से सोच के बताओ. एक फोर्स लगा लेकिन बॉडी इधर गई. ठीक है, तो अगर इस फोर्स से बॉडी इधर गई तो इस फोर्स का कौन सा हिस्सा होगा, विच कंपोनेंट विच इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली. तो लो ना एफ कॉस थीटा, तो फिर मल्टीप्लाई करो, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट विच फोर्स? द फोर्स विच इज सिग्निफिकेंट. सो एफ कॉस थीटा इनटू डी. So tell people that I have got a product method, and what is that method? Dot product. How to do it? F dot D is FD cos theta. ठीक है, is it okay? अगर गलती से ये फोर्स इधर लग गया, लगा दिया, हमें क्या पता था इधर ले जाना है. So tell me, ऑब्जेक्ट फोर्स इधर लगाया, चाहते थे इधर ले जाना, चाहते इधर, फोर्स इधर लगा दिया, बताना मास जाएगा किधर?
हो सकता है और फोर्स लगाओ, कभी अगर जाए, अब कभी गया तो ठीक है, ले जाना इधर चाह रहे थे, ले जा इधर रहे। इज इट अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड? इज इट अ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड? तब तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। So I will just shout at the performer, पागल हो गए हो, कर क्या रहे हो, तूने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो करना था नहीं किया, कर क्या रहे, कुछ भी नहीं किया, मतलब व्हाट इज द वर्क डन? सो इफ थीटा इज 90 डिग्री, व्हाट इज द वर्क डन? जीरो। तो वो हम सिखाते हैं लोगों को, ठीक है। इज इट ओके? सो दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डिफाइन क्रॉस डॉट प्रोडक्ट एज f dot d as f d cos theta or a dot b as a b cos theta. Come to the cross product. What is n cap? Tell me. What is n cap here? Okay, unit vector in which direction? Normal to what? Normal perpendicular to what? Both vector A and somebody might also call, इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे लाइन का एक मतलब और निकला, what is that? Perpendicular to what? Plane containing vector A and vector B, ठीक है, क्योंकि दो लाइन हमेशा एक प्लेन में होते हैं। अगर आप कहते हो कि इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर एक तीसरी लाइन है, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो लाइन है। Two lines always lie in a single plane. So perpendicular to both of them means perpendicular to this plane where both of them are lying. Fine. Is it okay? Definitely इस तरह का कहीं पर फिजिक्स में रिक्वायरमेंट आया होगा, जैसे मैंने यहां समझा, तभी जाकर इस तरह की डिफिनेशन बनी। ऐसा कुछ केस जरूर होगा जहां पर टू वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं और रिजल्ट वेक्टर होता होगा, जैसे टॉर्क, ठीक है, उसमें रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वी गेट अनदर वेक्टर, अनदर रिजल्टेंट वेक्टर। समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए भी, आपके लिए समझना है, क्योंकि जैसे वर्क डन आसानी से समझा लिया, वैसे टॉक का डायरेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दरवाजे वाले केस में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि दरवाजे में घूमता तो है दरवाजा, लेकिन टॉक का डायरेक्शन किधर है पता नहीं चलता। कुछ लोग सोचते हैं हिंजेस जहां लगा उधर है, कुछ और ही रिजल्ट आता है कभी कभी। फिर एक और एग्जांपल है टॉक का, जिसमें वो मिट्टी बनाने वाला जो एक सिस्टम नहीं होता, मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसमें गीली मिट्टी क्ले रख देते हैं बीच में और उसको घुमाकर ऐसे रोटेट करके छोड़ देते हैं और उसको इशारे से इसको पकड़ के ऐसे होल्ड करके रखते हैं, देन सडनली दे गेट द क्ले कमिंग आउट, और उसको शेप देना ऑब्वियसली उन्होंने सीख रखा है ऐसे, तो सीख के ऐसे ऐसे करके फिर उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। वो कभी कप बन जाता है, कभी वो सुराही बन जाती है, कभी कुछ और घड़ा बन जाता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट ऊपर कैसे आता है, क्योंकि ऊपर वो लेकर नहीं आते होंगे, हो सकता है कुछ फोर्स लग रहा हो, कुछ रिजल्ट लग रहा हो दोनों का, तभी तो ऊपर आता है। और अगर उसे क्लॉकवाइज घुमा दें, एंटी क्लॉकवाइज ना घुमाएं, तो कितनी भी कोशिश कर लो ऊपर निकालने का, ऊपर ने मिट्टी फैल जाएगी पूरे सरफेस पे, लेकिन आएगी नहीं ऊपर, ठीक है। कभी मौका मिले आप लोग अगर कभी तो करके करा के कोशिश करके देखना। So there must be cases where two vectors, when they act together, they result into third vector. And the third vector, not only this, the third vector might be occurring in a direction perpendicular to both of them. So we need to define now such kind of product where two vectors multiplied, fine, but the resultant has to be vector. So we define like this. The examples R cross F is torque. ठीक है, इज इट ओके? अनदर एग्जाम्पल इज dB वेक्टर, 12th में पढ़ोगे, इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड साइड में ये सारे कांस्टेंट हैं, दीज आर कांस्टेंट्स, I इज करंट, dl इज लेंथ, r इज रेडियस, okay, unit vector and this is radius. यहां पर what is r? Radius vector, f is force vector, ठीक है। ये हमने दो एग्जांपल्स दिए जहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, is it okay? Tell me, a cross b will be, if it is AB sin theta, if theta is 0 degree, then what is A cross B? 0, ठीक है। If theta is 90 degree,
Then what is A cross B? AB, okay, n cap. If theta is 180 degree, what is A cross B? What is sine 180 degree? 0, okay, cos 180 is -1. So sine 180 is 0, so this is also 0, A cross B is 0. What is the meaning of theta 0 degree in terms of two vectors? They are parallel. What is the meaning of theta 180 degree? So that means the result, what result says, two vectors whether they are parallel or anti-parallel, their cross product will always be 0. ठीक है? एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूं. Before I tell you that physical significance, I want to know that how many of you know the method to find the area of a parallelogram. How to find the area of this parallelogram? Not trapezium. I'm asking parallelogram. Base into? So what is the height here? If this is theta, so height will be? So आपने कहा कि area of a parallelogram is AB sin theta. So can I write A cross B का mod? So what is the physical significance of having cross product of two vector? Actually, when you find the cross product of two vector, magnitude of that cross product happens to be what? Area of a parallelogram whose two adjacent sides are making the parallelogram. ठीक है, two vectors. ठीक है, note कर लो कहीं पर. The physical significance of cross product of two vector is that the magnitude of the cross product of two vectors, happens to be the area of parallelogram, whose two adjacent sides are represented by the two vectors. Children, can I write A cross B equal to B cross A? Can I write this? If yes, then I think cross product is also commutative. If no, then it is not commutative. But who will decide yes or no? Before you decide yes or no, you have to first tell me that how to find the n cap direction, because as far as AB sin theta is concerned, वो तो दोनों केस में सेम होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है AB sin theta का, तो इट इज द n cap जो प्रॉब्लम कर सकता है. पहले n cap डिसाइड करते हैं. हाउ टू फाइंड? आपने कहा n cap बताया था आपने अभी कुछ. n cap is what? Perpendicular to both A and B. So if I have a plane, how many perpendicular? This is a plane in front of you. How many perpendiculars can be defined for this plane? How many direction of perpendicular? कुछ लोग सोच रहे होंगे इनफाइनाइट. मैं एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट परपेंडिकुलर को सेम कैटेगरी में एक ही हुआ वो. ठीक है, टू ओनली. ठीक है, अब बोले सर इनफाइनाइट टू हुआ क्योंकि एक आपकी तरफ, दोनों परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, ये जानना जरूरी है कि आउट ऑफ द टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ परपेंडिकुलर एन कैप एक्चुअली कौन सा होगा. इसका मतलब उतना कहने से सफिशिएंट नहीं होता जितना आपने कहा था. आपने ये तो कहा था कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो उससे दो ऑप्शन हो सकते हैं. अगर ये दो वेक्टर्स हैं, कैमरा, अगर ये दो वेक्टर्स हैं सपोज, इनके दो परपेंडिकुलर होंगे, एक ऊपर एक नीचे. अब ये जान लेते हैं कि ए क्रॉस बी में कौन सा एक्सेप्ट करते हैं. क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड ये डेफिनेशन है तो वहीं से आया होगा ये. तो जो मैं बताना जा रहा हूं ये एक्चुअली बताने का एक नोशन हो सकता है, याद करना कराने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है कि हम जानते थे आप नहीं जानते. ये बस एक तरीका है, याद कराने का तरीका, क्योंकि हो सकता है इसी तरह से करने से आता हो रिजल्ट. ठीक है,
तो अगर मैं ए क्रॉस बी इसमें निकालू, इस डायग्राम में, ये ए है ये बी है, ए को बी की तरफ घुमाऊं, अगर मैं ए को बी की तरफ घुमाऊं, इसी को तो आप कह रहे हो क्रॉस ए क्रॉस बी, तो जिधर थंब होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो इस केस में ए क्रॉस बी किधर हो गया, ऊपर, बी क्रॉस ए निकालना, so how can a cross b will be b cross a actually? So what is the conclusion? Cross product is not commutative. Note कर लो कहीं पर।